Hello, friends. Very good morning to you all. See, now we completed the first lesson. In that, on page number 15, you have one question. Pick out all the adjectives in the poem. So, and in grammar also, you have one lesson, 23rd lesson, adjective. So, simultaneously, I want to introduce adjectives, types, and everything. Every year, doubt should be cleared so that you can always remember adjectives. So, I am presenting you before adjectives, its types, and examples. Okay, so begin our lesson with adjectives. If possible, I'll we will take your textbook, grammar textbook, 23 adjectives also if the time permits. Otherwise, I will introduce adjective and I'll be sending your lesson number 23 adjectives in the next video that we will be discussing in the video. So, today's topic is adjective. Now, you might be wondering, what is adjectives? What is adjective? First, begin with the meaning and definition of adjectives. Adjectives are those words which describe the nouns or pronouns. कोई भी चीज को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव बोला जाता है. जैसे कि अभी तक मैंने नाउन और प्रोनाउन पे आपको वीडियोस भेजे हैं. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड वाइल प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. हर वक्त नाउन यूज़ करना पॉसिबल नहीं है और अपन ने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस वगैरह भी बहुत अच्छे से आपको मैंने वीडियो भेजा था. तो दिस इज़ अबाउट एडजेक्टिव. Adjectives are those words which describe the nouns or pronouns. और एक definition क्या है? Adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Noun के meaning को चार चांद लगाना बोलते वैसे. जैसे कि for example, कार कैसी है? Black. Boy कैसा है? Good. Good, black, many, few, big, brave are some examples of adjectives. So sentence में अगर उसको बताना है, phrase में तो black car, sentence में there is a black car, phrase में good boy, he is a good boy, many cars, there are many cars, few boys, there are few boys, big car, it is a big car, brave boy, he is a brave boy. तो इस तरीके से दोस्तों आपको एडजेक्टिव का इंट्रो भी मैंने कर दिया. व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स आर दोस वर्ड्स विच डिस्क्राइब द नाउन्स और प्रोनाउंस. ओके, नाउ क्लियर विथ एडजेक्टिव मीनिंग. अभी देर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. 8 प्रकार के एडजेक्टिव्स है, जैसे कि 8 प्रकार के प्रोनाउन थे और थोड़े बहुत नाम प्रोनाउन के साथ मिलते जुलते हैं. तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे प्रोनाउन को पहचानना है और कैसे एडजेक्टिव को पहचानना है. सो वॉच केयरफुली टिल द एंड दिस वीडियो. फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड पोसेसिव एडजेक्टिव. सो आपको दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पोसेसिव, ये सब एडजेक्टिव्स, ये सब नाम प्रोनाउन के साथ फेमिलियर है. तो आज एडजेक्टिव के साथ भी जानेंगे और जानेंगे ये कि कब प्रोनाउन आपको कब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताना है और कब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताना है. ऐसा क्या डिफरेंस है जो आप इसको ईजिली पहचान सकोगे. ओके देन विल मूव. First, we will discuss adjective of quality. As I mentioned, first one is adjective of quality. Understand? Adjective of quality means of what kind? The words that describe the quality of noun or pronoun are known as adjective. जो quality बताता है कि कैसे है. For example, good, bad, black, hungry, etc. कि
नाउन कैसा है या प्रोनाउन कैसा है. ओके, ही इज़ अ क्लेवर बॉय. तो क्लेवर इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आई सॉ अ हंग्री डॉग. हाउ इज डॉग? डॉग इज हंग्री. This is a heavy box. How is the box? Box is heavy. So everything is describing what? Noun. Sarah is a smart girl. Smart. Okay. So these are few sentences for adjective of quality. Example for adjective of quality. So now next, adjective of quantity. As I said, second number is adjective of quantity. How much? कितना. Adjective of quantity जैसे कितना. The words which describe the quantity, approximate quantity of noun or pronouns are known as adjective of quantity. For example, some, little, all, whole, double, few, half, any, etc. तो अब सेंटेंस में इसको देखेंगे दोस्तों. आई डोंट हैव मच टाइम. मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है. ज़्यादा या कम, इसको परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को परिमाणवाचक विशेषण. आई हैव लिटिल फेथ इन गॉड. थोड़ा सा. ही हैज़ टेकन हाफ कप ऑफ मिल्क. क्वांटिटी बताता है अगेन. ही हैड लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ. पूरी उसकी दौलत चली गई. नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर में क्या डिफरेंस है अगली स्लाइड में आपको बताऊंगी. वर्ड विच एक्सप्रेसेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस and their position are placed in certain order is called adjective of number. For example, 1 are first, 2 are second, 3 are third, and so on. Each, none, several, all. It should be none. No की जगह पे none कर लेना. वो none चाहिए. Each, none, several, all, some, etc. Okay. तो अभी इसके सेंटेंस देखेंगे. A week has 7 days. एक सप्ताह में 7 दिन रहते हैं. There are 9 persons in a group. Every poor needs job. हर एक गरीब को नौकरी चाहिए. There are no stories in this book. इस बुक में कोई स्टोरी नहीं है. अब देखिए इस स्लाइड में डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. क्योंकि कुछ वर्ड्स जैसे सम, फ्यू, मैनी दोनों में आते हैं, तो इसको कब किसके साथ यूज़ करना है दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो इसीलिए मैंने बोला है वीडियो को आखिरी तक देखना, वीडियो में नोट डाउन करना और कुछ चीज़ें जैसे कि ये डेफिनेशंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी दोस्तों. द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज़ दैट इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जैसे कि सम कुछ पता नहीं कितने, फ्यू थोड़े से, मैनी बहुत, लेकिन उनका नंबर नहीं पता रहता है. इनको अपन अनकाउंटेबल ना आर यूज विथ काउंटेबल नाउन्स. जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसके साथ यूज होता है. Adjective of number is used with countable noun, whereas adjective of quantity are used with uncountable noun. Adjective of number countable number denote करता है कि आप काउंट कर सकते हो. इसलिए आपको ध्यान में क्या रखना है, adjective of number is used with countable noun and adjective of quantity is used with uncountable noun. तो आइए देखते हैं कैसे इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ वही वर्ड यूज़ किया गया. आई ड्रैंक सम वाटर. अब आपको वाटर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा जो कि नाउन है. तो वाटर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल. इसीलिए यहाँ पे जो सम है वो एडजेक्टिव है, लेकिन वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं हो सकता क्योंकि वाटर को अपन 1 2 3 से काउंट नहीं कर सकते. दोस्तों
बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सम पीपल स्टैंडिंग देयर, कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं। पीपल इज़ काउंटेबल नाउन। पीपल क्या है? पीपल काउंटेबल नाउन है, इसलिए कुछ लोग वहाँ खड़े हैं तो आप 1 2 3 से गिन सकते हैं लोगों को, भले ही वो 10 लोग हो 20 लोग हो, लेकिन यू कैन काउंट। सो जब आप काउंटेबल नाउन के साथ वही सम फ्यू मैनी यूज़ करते हो तब वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता है दोस्तों। ये डिफरेंस है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। नेक्स्ट इज डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो अभी फ़िलहाल डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है जानिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊंगी कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डेमॉन्स्ट्रेटिव। स्पेसिफिक जो पॉइंट आउट करता है सेम प्रोनाउन का भी डेफिनेशन है, लेकिन बाद में अपन आपको सेंटेंस में कैसे पहचानना है कि ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, ऐसा साथ में तो कभी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जब आप मैच्योर हो जाओगे तो कैसे इसको एडजेक्टिव पहचानना है डेमॉन्स्ट्रेटिव और कैसे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, लेटर, फॉर्मर, सच, एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो विच का आंसर देता है। अभी देखो डिफरेंस बिटवीन डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन। नाउन के उसके बाद हमेशा डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। जैसे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे से देख लिए ना, दिस, दैट, दीज, दोज, लेटर, फॉर्मर, सच, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी है। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पहचानना कैसे है, इसके बाद हमेशा नाउन रहेगा, उसको अपन डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। वो नाउन को मॉडिफाई करता है और नाउन उसके बाद नाउन आता है। अब डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज की प्लेस लेता है वो, इसके बाद कभी नाउन नहीं आता। नेवर इट इज़ फॉलोड बाय नाउन। दिस इज़ माई कार, तो माई कार फ्रेज है, इज़ वर्ब है, और दिस जो है वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ गई दोस्तों दोनों में डिफरेंस। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है एंड ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन, जबकि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज। समझ में आ गई दोस्तों? हाँ, ओके। सो वी विल नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आस्क क्वेश्चंस। वर्ड्स that are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives. जो words noun के साथ यूज़ होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए उनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस जान लीजिए, क्योंकि दोनों के वर्ड WH वर्ड्स ही है, वॉट, व्हेन, वेयर, वाई, विच, ऐसे। तो अब आप पहचानेंगे कैसे कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आपके मन में डाउट भी आया होगा, तो अभी ये डाउट धीरे धीरे सब डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब्स अ नाउन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और नाउन को डिस्क्राइब भी करता है। अभी देखो विच के बाद कलर जो है तो वो नाउन है, कलर जो है वो नाउन है। विच कलर लुक्स एडजेक्टिव बेटर। कौन सा कलर अच्छा लगेगा, म्हणजे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अच्छा लगेगा म्हणजे डिस्क्रिप्शन, लुक्स बेटर।
अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्क अ क्वेश्चन बट स्टैंड्स अलोन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो कभी डिस्क्राइब नहीं करता है नाउन को. डज नॉट डिस्क्राइब अ नाउन. वो अलोन खड़ा रहता है. विच शुड आई बाय यू ऑन योर बर्थडे. आपके बर्थडे के दिन कौन सा खरीद के दूँ. इधर कौन सा ऐसे यूज़ होता है कि वो stands alone and it does not describe a noun, whereas in interrogative adjective it describes, it asks questions. दोनों में क्वेश्चन तो पूछते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स अलोन एंड डज नॉट डिस्क्राइब नाउन. क्लियर दोस्तों. आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, बुक में बहुत अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि दीज थिंग्स आर नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. दिस इज़ द एक्स्ट्रा आई एम गिविंग टू यू. ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है. तो अभी अपन इस स्लाइड में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में बहुत अच्छे से जान लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस वी विल डिस्कस. अ वर्ड यूज टू रेफर to each and every person or thing is called distributive adjective. रेफ़र करता है, जैसे each, every, neither, either, any, one, both. Both of you come from the class. तो क्वांटिटी हो गई ना, दोनों आओ. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है. अब जानेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वर्ड्स तो सेम है. हर प्रोनाउन जो एडजेक्टिव है और प्रोनाउन भी है, जैसे कि इंट्रोगेटिव था, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव था, तो वैसे उनके वर्ड्स सेम है, लेकिन कब उसको एडजेक्टिव बताना, पहचानना, या कब उसको एडजेक्टिव के सेंटेंस में यूज़ करना और कब उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में यूज़ करना, ये जानना बहुत ज़रूरी है. ये डिफरेंस थोड़ा बहुत है, लेकिन जब आपको पहचानने की बारी आती है, जब अगर आपको डिफरेंस नहीं पता, तो यू विल बी इन अ डायलेमा. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. There is always a noun next to the distributive adjective. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा म्हणजे इट इज़ फॉलोड बाय द नाउन, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अपन ने बोला था. देर इज़ ऑलवेज अ नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपको बता दिए. ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी, वन, बोथ. तो ये सेम एग्जाम्पल स्टैंड्स गुड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑल्सो, लेकिन यूज़ कब करना है और पहचानना सेंटेंस में कैसे है. ईच मैन वॉज गिवन अ पेन. मैन इज़ अ नाउन, इट इज़ फॉलोइंग ईच, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. A distributive pronoun used as a subject and object. वो खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में. देर इज़ नेवर अ नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ये आपको याद रखना है. अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. जो भी एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के सेम है. ईच, नन, ऐसे. ईच ऑफ अस विल गेट अ पेन. हर एक को पेन मिलेगा. तो यहाँ पे इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. व्हेन अ वर्ड इज़ फॉलोड बाय अ नाउन, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. अब आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिए. अब आता है प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर नाम का क्या सुना है आपने? ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन में से ये ओरिजिनेट हुआ है, म्हणजे इसने जन्म लिया है. जैसे प्रॉपर नाउन क्या है दोस्तों? इट इज़ अ स्पेसिफिक नेम, स्पेशल नेम. जैसे अपन नाउन के बारे में, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में सब पढ़ लिया. तो अभी प्रॉपर एडजेक्टिव originates from proper noun. Proper adjective originate from proper noun, and like proper noun,
प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। देखो यहाँ पे प्रॉपर नाउन के जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल इटालियन, इंडियन, रशियन एक्सेट्रा। समझ में आई बात? अब पोसेसिव एडजेक्टिव, जैसे पोसेसिव प्रोनाउन भी है वैसे पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव्स शो समथिंग बिलोंग टू समबडी। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या बताता है? कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो किसी को बिलोंग करती है, जैसे कि माय, योर, इट्स, दैट्स, हिज, हर, माइन भी आता है इसमें। समझ में आया? तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के वर्ड्स तो सेम है, लेकिन वापस से दोस्तों आपको डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए सॉरी, आपको पहचानते आना चाहिए कि एग्जाम्पल के साथ अपन कैसे इसको करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो ओनरशिप एंड कम्स बिफोर अ नाउन। इन सब में देखिए एक बात आपने कॉमन नोट की होंगी, जैसे कि सेम एडजेक्टिव और सेम प्रोनाउन जितने भी हैं उसमें नाउन के पहले उस एडजेक्टिव को यूज़ किया गया है, जैसे वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो, वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो या पोसेसिव एडजेक्टिव हो। तो हर पोसेसिव एडजेक्टिव को, हर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को, जो कि नाउन के साथ सेम नाम वाले एडजेक्टिव्स है ना, उन सब को उसके बाद में नाउन आता है। म्हणजे इट ऑलवेज फॉलोज अ नाउन एंड कम्स बिफोर अ नाउन इन द सेंटेंस। वो वर्ड के बाद नाउन आता है या नाउन के पहले वो वर्ड आता है, वन एंड द सेम। Possessive adjective is used to show ownership and comes before a noun in the sentence. My book is on the table. मेरी बुक टेबल पे है। अब possessive pronoun के बारे में जानेंगे। Possessive pronoun does show ownership but it does not come before a noun. ये भी possessive adjective के जैसे ये भी ownership बताता है। ओनरशिप म्हणजे मेरा, उसका, उनका, इसको ओनरशिप बोलते हैं। अब माय बुक इज़ ऑन द टेबल म्हणजे मेरी, मेरी म्हणजे ओनरशिप हो गई ना। अब उसी तरीके से पोसेसिव प्रोनाउन भी ओनरशिप बताते हैं, लेकिन उनके पहले, उनके बाद में कभी नाउन नहीं आता। बट इट डज नॉट कम बिफोर अ नाउन। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिप्लेस नाउन। नाउन को रिप्लेस भी कर देते हैं कभी कभी। दिस फोन इज़ योर्स। ये फ़ोन आपका है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार फिर भी नज़र डाल लेते हैं सब चीज़ों पे, जैसे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिफरेंस बिटवीन डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सब में एक बात नोट की है कि ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं, और जो बाद में या बीच में कहीं पे भी आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, तो आपको कुछ इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस वीडियो में अपन आज आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या है। तो आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 23 और पेज नंबर 89 है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें सिर्फ 5 एडजेक्टिव्स दिए हैं दोस्तों, और इसके बाद जो है वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, इसीलिए वो टॉपिक थोड़ा दूसरा हो जाता है।
तो दोस्तों इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ ये 5 मेन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स है, फर्स्ट पेज नंबर जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताया है कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के हैं। एडजेक्टिव्स 8 प्रकार के हैं। क्या एडजेक्टिव है वो भी बताया है, तो अपन फटाफट इसमें जान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड, गुड आइडिया, फनी स्टोरी, वैल्यूएबल गिफ्ट, क्लेवर स्टूडेंट, कॉस्टली क्लॉथ। तो ये बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दे हैव सेम फॉर्म ऑफ एज डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसा इनका बोलना है। दिस बुक, दीज बुक, दैट वुमन, दोज वुमन। इन्होंने आपको डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जैसे मैंने डिफरेंस बताया है वैसे आपके टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं बताया है, तो ठीक है, मेरा आप नोट डाउन कर सकते हो या आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी है। आपको अभी नहीं होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम है बताना, सो आई शोड यू। उसी तरीके से पॉसेसिव एडजेक्टिव उन्होंने बोला है माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर, माई कैमरा, हर बैग, देयर फ्लैट। एक बात आपने मार्क की, हर, माय, हर, देयर सब क्या आया, नाउन के पहले आया, तो नाउन के पहले आता है वो एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है व्हाट, विच, हुज, मैंने जैसे बताया इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी वैसे ही है। तो विच, व्हाट डेट इज़ टुडे, विच सीडी इज़ योर्स, तो नाउन के पहले आ गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी 1, 2, 21, 2, 9th, and all words like all, both, much, many, enough, some. 2 computers, all girls, enough, rice, some mangoes. समझ में आ गई बात। इन modern grammar adjectives of types 2, 3, 4 and 5 are classed as determiners. इनको डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं, एक चीज़ आप जान लो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए और जानकारी दूंगी, जैसे कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का है वो लेसन, आपको एडजेक्टिव के साथ वो भी दे दिया है, तो मैंने आपको एडजेक्टिव बेटर वे में समझाने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ पुट ऑन द ग्रुप।